First few questions in English, then we move on to cricket. Hi. Can you explain the difference? Sorry? Can you explain the difference? I mean, on Sunday you weren't very good, today you were excellent. I think today was the difference was our bowling and fielding. But what did you do to make them better? The fielding in particular. What did you concentrate on to make it better? I think actually we do not fielding, we had a rain other day, so actually we do nothing. just so that's why players are very boosted up for the yesterday meeting, so everything's right on the things. But did you or the coach say anything? The coaches say anything to the players? Did you Yeah, shout at them? To you? Yes, we had a meeting yesterday, and we had a very good meeting talking all about batting, fielding, and bowling. If you play ICC Champions Trophy at a big event, so make sure your fielding department was very good. So credit goes to the players who was today's fielding fantastically well. Was it a case of the coach shouting at the players or just telling them that they had to do better? No, not shouting. Our coaching staff was very good. They're backing us after the defeat match, but they very well supported us. So that's why we played a good game today. English question first. AB de Villiers. AB said yesterday that he thought, you had just 2 part-time spinners and there wouldn't be much pressure for South Africa. Just what do you have to say to that in terms of how you responded? I think, we have not 2 we have 2 regular spinners, Imad Wasim and Shadab Khan. And today Shadab Khan only just bowled 5 overs because, Mohammad Hafiz and Imad Wasim bowled really well today. And they took the pressures off for us. They took 3 wickets early on. Sarfraz, can you tell us more about the bowling? The bowling was different today. Against India you went for 72 runs off 4 overs at the end. Was there a different plan? If so, what was it? Yeah, actually we had a good bowling meeting yesterday. We thought about they had a good batting side. So make sure if you're bowling right areas, so we had a good thing is today we took wickets. If you took wickets, so every big team under pressures. You seem to feed off the energy of the crowd really well, and in turn they fed off of you. Is there some sort of relationship that really kind of gathers energy over the course of your innings? Can you feel it when you're on the field? Yeah, that is the feeling we miss in, we're not playing in Pakistan. So maybe that was a different, crowd was supporting us. That's why a player boosted up. And today was I think credit goes to the crowd as well. They will support very much us. Thank you. Sir. सरफराज, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि पाकिस्तान की टीम ने ये मैच जीता। आप क्या समझते हैं कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी थी और अल्लाह का करम भी था? ये परसेंटेज कितनी थी? 50-50, 40-60? सर देखें, मैं समझा नहीं सर आपका सवाल परसेंटेज के हवाले से। परफॉर्मेंस भी थी आपकी और अल्लाह का करम भी था कि बारिश हो गई, तो आप इसको क्या करेंगे, किस तरह से? सर देखिए, लास्ट जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसमें आपकी टीम को अच्छा नहीं सर, देखें ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारी रही और बारिश के हवाले से तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था। और यहाँ पे ये प्रोटेक्शन थी कि जिस दिन फोरकास्ट नहीं होती तो उस दिन बारिश हो जाती है। तो यही था कि पहले तो क्रेडिट दूंगा अपने बॉलर्स को कि ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, जो हमने प्लान तैयार किया था बॉलिंग कोच के साथ, और ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। उसके बाद हमने इस तरह की हमने फील्डिंग की, आई थिंक वो काबिल दीद थी। और आज देखा होगा कि आपने लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त जान मारी। और उसके बाद देखें बैटिंग में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। जब हमें रन रेट की ज़रूरत थी, जहाँ पे डकवर्थ के तहत हमें ऊपर जाना था, वहाँ पे हफीज़ भाई ने थोड़ा चार्ज किया, उसके बाद जाकर शुएब भाई ने इस तरह बैटिंग की। तो आई थिंक ओवरऑल एज ए टीम जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हमारी। और आई थिंक मैं समझता हूँ कि 100% एफर्ट थी हमारी। सरफराज, इंडिया से हारे तो ये बातें सुनने को मिली, कोच हटा दो, कप्तान को भगा दो, पाकिस्तान क्रिकेट मर गई है, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे? नहीं सर, जवाब तो किसी को क्या देना है सर, वो जाहिर सी बात है उनका काम है।
हम लोगों पर क्रिटिक्स करना और ये थे, आई थिंक वो ठीक थे, हमने गंदा किया तो हमें ये सारी चीज़ें सहनी भी पड़ेंगी। लेकिन ये है कि बस मैं यही कहूँगा कि देखें यही हमारी टीम है और यही हमारे बेस्ट लड़के हैं। अगर हम सब मिलके इस टीम को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह तो डेफिनेटली ये टीम आगे जाएगी। आप देखें जितने भी यंगस्टर जो भी खेल रहे हैं माशाल्लाह सब परफॉर्म किया। आज फ़खर जिस तरह खेला, हसन ने जिस तरह बॉलिंग की, इमाद ने बॉलिंग की, शदाब ने बॉलिंग की, तमाम लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर इस टीम को थोड़ी सी सबकी बैकिंग मिलेगी इंशाल्लाह तो जिस तरह टीम एक्सपीरियंस लेती जा रही है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा सरफराज, फ़खर की आपने बात की तो उनके बारे में क्या कहेंगे जिस तरह उन्होंने आज स्टार्ट किया? डू यू थिंक कि ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में अब हमारा एक सेट ओपनर हमें मिल गया है? और दूसरा आपने क्या मतलब ड्रेसिंग रूम में पेप टॉक क्या थी, क्योंकि इंडिया के बाद मोराल काफ़ी कम नीचे हो गया होगा, तो आपने किस तरह टीम को मोटिवेट किया? देखें पहले तो फ़खर का मैं बताना चाहूँ कि उसके साथ मैं खुद उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि जिस क्लब में वो खेलता है कराची में, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में, मैं उसके साथ खेलता रहा हूँ तो बहुत अच्छे से मुझे मालूम था। फिर वो शिफ्ट हो गया मर्दान की तरफ, वहाँ से एबटाबाद से खेलना शुरू हो गया। तो आई थिंक कि ज़बरदस्त प्लेयर था, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस की थी और हम चाह रहे थे कि क्योंकि हम लोग लॉस करे तो हम चाह रहे थे कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम ट्राई करें। और जिस तरह आज उसने स्टार्ट किया, लो स्कोरिंग मैच था और जिस तरह उसने बैटिंग की, आई थिंक उसके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा बूस्टअप है ये इनिंग। और आई थिंक देखें अभी ये कहना कबल वक्त है कि हमें ओपनर मिलेगी, अभी उसके भी अर्ली डेज हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे वो खेलता जाएगा इंप्रूव करता जाएगा अपनी बैटिंग में। और जहाँ तक रही बात के क्या पेप टॉक हुई, देखें ऑब्वियसली मैच के बाद हमारी कोच के साथ मीटिंग हुई, ऑब्वियसली उसने भी लड़कों को बताया कि हमारी ये मिस्टेक्स थी। और मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का मैच था उसमें हमारे लड़के कुछ ज़्यादा प्रेशर फील कर गए क्योंकि जो यंग लड़के थे जो पहली बार खेल रहे थे जिसकी वजह से मिस फील्डिंग हमने की और मिस फील्डिंग से वजह से हमें कॉस भी हुआ। 4 ओवर जो हमारे बहुत गंदे हुए तो जिसकी वजह से हमें कॉस भी हुआ। तो उसके बाद ये कि लड़कों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया कि अभी भी 2 मैच हैं और जिस तरह लड़कों ने आज रिजल्ट दिया उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सरफराज, हमने संडे को एक डिफरेंट टीम देखी, आज एक डिफरेंट टीम देखी और जनरली इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी सालों से ये हो रहा है कि हमारी टीम जब उतरती है वो एक डिफरेंट गेम देती है, उन बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं होती। तो तुम्हें क्या लगता है क्या वजह है कि मतलब क्या माइंडसेट है कि अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान की टीम अपना पूरा गेम नहीं दे पाती? हाँ देखिए मैं अभी पहले का तो नहीं मालूम लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैच में मैं एज ए कैप्टन मैंने फील किया कि जो यंग लड़के थे थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा प्रेशर अपने आप को थोड़ा ले गए और जिसकी वजह से हमें एज अ टीम जो है वो थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ, इसका नुकसान भी हमें हुआ। और उसके बाद देखें फिर यही बात की क्योंकि कोच को भी एक चीज़ें बाहर से नज़र आई कि टीम ने प्रेशर फील किया, ना बॉलिंग अच्छी हुई, ना बैटिंग अच्छी हुई, ना फील्डिंग अच्छी हुई। तो उसके बाद कोच ने यही बोला कि अगर हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो हम इस तरह के इवेंट में आगे किसी भी टीम को चैलेंज नहीं कर सकते। तो यही उनसे बात की गई, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया। हालांकि हारने के बाद मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि सब अपने टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस जो है वो निकल के सामने आई है। सरफराज, एज अ कैप्टन क्या लगता है, पहले मैच में आपने कुछ गलतियां की थी, फिर खुद कोशिश की इंप्रूव करने की, रियलाइज किया कि गलतियां हुई थी आपसे पहले मैच में? देखें अब ऑब्वियसली अगर आप देखें तो बिल्कुल गलतियां हुई मुझसे और बिल्कुल इसको मैं मानता हूं क्योंकि जो हमारा प्लान था हमने वो किया लेकिन वो पूरा जो है अचीव नहीं हो सका। तो ऑब्वियसली देखें गलतियां होती हैं, मैं भी सीखने के मराइल में हूँ, आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे मैं भी सीखता जाऊँगा और कोशिश की है कि जो गलतियाँ पिछले मैच में हुई उसको बार बार ना दोहराऊं। सरफराज, आपको बहुत मुबारक हो आज की जीत। और इम्पॉर्टेंट बात है पार्टनरशिप की और ओपनर्स की। अजहर अली के बारे में बड़ी फिक्रमंदी है कि क्या आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट बैट्समैन है लेकिन जिस तरह से वो शॉट्स खेल रहे हैं और आउट हो रहे हैं, क्या आप उनको मैनेज करेंगे वनडे के हिसाब से? क्या आप समझते हैं कि उनको उनका रोल पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है, एक एंकर मैन के तौर पे काम करना है, या आप समझ रहे हैं कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है? नहीं देखिए बिल्कुल कम्युनिकेशन हमारी है और बिल्कुल उसके साथ कम्युनिकेशन जारी है, मेरी भी और कोच की भी। और बिल्कुल ज़बरदस्त प्लेयर है अजहर अली, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। पिछले मैच में भी अच्छा खेल रहा था, आउट हुआ बाद में, आज थोड़ा सा जल्दी आउट हो गया। लेकिन ये है कि जिस तरह से फ़खर ने स्टार्ट किया था तो आई थिंक उसका वहाँ पे मैं समझता हूँ कि उसका रिव्यूअल बनता था कि वो आखिर तक जाता। तो ये है कि इंशाल्लाह देखें चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अभी हम कुछ नए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखें आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि उससे बात की जाए कि आपका जो रोल है कि आपने जो है इनिंग को कैलकुलेट करना है। अगर फ़खर अच्छा खेलता है तो आपने इनिंग को बिल्ड करना है और उसके साथ कैरी ऑन करना है। सरफराज, आपका आखिरी मैच श्रीलंका से है और पूल पोजीशन ये है कि हमारा रन रेट बहुत कम है, तो इसी कम्बिनेशन को बरकरार रखेंगे, यही छतरोल और यही थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे या कुछ तब्दीली है? देखें ये तो अभी वहाँ जाके पिच देख के डिसाइड करेंगे क्या कॉम्बिनेशन हमें सूट करता है। ऑब्वियसली टीम ने जो आज टीम खेली है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जो हमने
कॉम्बिनेशन ट्राई किए, फ़खर का ट्राई किया या स्पिनर्स का बीच में ट्राई किया। तो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें अच्छी रही हैं। अभी देखते हैं कि वहाँ पे जाकर क्या पोजीशन बनती है, क्या रन रेट बनता है। पहले तो हमारा फोकस है कि हम मैच जीतना है, उसके बाद जो भी सिचुएशन बनेगी ड्यूरिंग द मैच के रन रेट को कहाँ पे लेके जाना है। पहला टारगेट ये है कि ऑब्वियसली मैच भी जीतना है और रन रेट भी बेहतर करना है। थैंक यू।